क्योंकि हम्म। दीपिका प्रेग्नेंट है, राइट? तो अगले पार्ट में शायद कल की अवतार जो हम्म। आएंगे उनके बारे में स्टोरी हो, उनकी अपीयरेंस हो गई है, और फिर स्टोरी फिर उनके ऊपर फोकस्ड होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। या हम्म। मतलब मूवी का नाम भी ऐसा हो सकता है, कल की दी अपीयरेंस। मेरा बस अजम्पशन है, वो और भी हम्म। ज़्यादा एपिक होगी। बट फर्स्ट ट्रेलर हमने देखा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कमेंट्स में, और सेकंड ट्रेलर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो अभी जैसे कि हमें काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि आपको नाग अश्विन के जो इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स हैं, 2 एपिसोड्स निकले हैं अभी इस मूवी से रिलेटेड। एक प्रेल्यूड ऑफ कल्कि और दूसरा वर्ल्ड ऑफ कल्कि 2898 एडी। तो अभी हम फर्स्ट एपिसोड पे रिएक्ट करेंगे और देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमने मिस की। तो वीडियो शुरू करें आलोक? यस यस, शुरू करते हैं। How the first chapter of our world is going to look like. In India, we've grown up the epics, especially Mahabharata and Ramayana. Another age to go, and that age is the final battle. In India, we've grown up with so much of the epics, especially Mahabharata and Ramayana, being part of our culture and everyday life, like especially not just religious, but just like even just stories that we tell our kids. And so, you know, when you grow up and you're watching a lot of, I guess, foreign films which are in the either comic book space or Marvel or Spider-Man or Star Wars or any of those things, you always wonder like where are our superheroes, because they are as heroic and they are as larger than life as anybody else. I think I heard that slowly people across India were more interested, or they were starting to think about making movies like this. I heard some talk about somebody talking about Immortals and some studio trying to think about it, and I was like, okay, now it's time for us to. And the world of Kalki is something that we are saying is almost like a sequel to the last epic that we have of these characters of the previous yuga. So the previous yuga in India, in Indian culture, we have 4 yugas, right? So each yuga has a sort of a dramatic battle and a great good versus evil sort of a setup, and each time an avatar comes to restore the balance. And the last great epic that we have is the Mahabharata, where it was like a huge war with the most powerful and the most epic kings, and they fight in this dramatic battle, and they are, one side is protected by an avatar, a god figure, which is Krishna. Final epic was the last story that we know, and all of our greatest characters from there have an ending, or some of them have an open ending, or we know that this is where this story ended, but we still have another age to go, and that age is the final battle. That age is where the end essentially has to begin, and everything has to come to a climax. Like all of these stories, all of these 9 avatars, all of these 4 yugas, all of these battles which are small and big that happened since the creation of time has to end somewhere. So we tried to see if we could attempt to write that, and that's how we started. And that's where the last story of our mythology sort of ends. And now we are meant to be in the last age, which is called the Kali Yuga, and we don't really have a story of this era or of this yuga because it's still happening, obviously. And I just thought it is a very interesting idea if we start writing a sequel to the Mahabharata. एक सेकेंड, सॉरी गाइस, आई एम पॉजिंग अगेन। आपने बोला है कि पॉज मत किया करो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को दिखी यहाँ पे। ये आलोक, ये तुमने किसी भी ट्रेलर में नोटिस किया है ऐसा कुछ यूएफओ टाइप का, स्पेसशिप टाइप की चीज़? ये आई थिंक जो फर्स्ट ट्रेलर था ना इनका, तो उस पे था ये, आई थिंक। मेरे एग्जैक्टली को तो क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा, मे बी आई हैव मिस्ड आउट आई फर्स्ट डोंट ट्रेलर में, रिमेम्बर कि एग्जैक्टली ऐसा है था ना? कि नहीं था, बट हाँ, एक जैसे ये जायंट बीइंग है, तो ऐसा कुछ था, बट एग्जैक्टली ये वाला सीन था या नहीं था, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये मेरे को, मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हम्म। हो। बट हाँ, इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये एलियंस का ही, मतलब स्पेसशिप हो सकती है फ्यूचर में, बट ये यूएफओ टाइप की चीज़ लग रही है मेरे को। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। हम्म। If we start writing a sequel to the Mahabharata,
what would happen, because it ended there and Kali continues from Dwapar Yuga and he has to come into the Kali Yuga. So now if he comes in, now our heroes have to come in as well. And how is this epic going to be? How are we going to write this? And I wanted to write it in a way that it's today and it's for the whole world to be part of it now, because it's not just because it was never, I think, ever just one country. It's always the world. So I thought we'll write it in that sensibility, and hence 5 years later we are here and we are close to being able to share with you how the first part, how the first chapter of our world is going to look like. Hmm. चैतन्य, Interesting. मुझे लग रहा है ना कि हमको Mhm. सेकंड एपिसोड भी देखना चाहिए, और Hmm. उसके बाद ही मुझे लग रहा पूरा जो भी रिएक्शन है वो देना चाहिए। राइट राइट, इसमें तो प्रेल्यूड है ना, ये तो इसमें इंट्रोडक्शन है। दूसरा एपिसोड देखने से पहले कमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि हम टॉप कमेंट्स और न्यू कमेंट्स पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले इसके बारे में, क्योंकि लोगों के ओपिनियन, लोगों का पर्सपेक्टिव वो वैल्यू ही देता है। सो टॉप कमेंट्स पहले, 2000 प्लस करोड़ ग्रॉस सपोर्ट ग्रॉस सपोर्ट बटन। बटन। ओके, लेट्स सपोर्ट इट। आई रियली वांट दिस मूवी टू डू वेल, क्योंकि इनको सपोर्ट मिलेगा तो और जो क्रिएटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, लेट्स डू इट। सीक्वल टू महाभारत, द एज ऑफ कलयुगा, माय गॉड। तो एक्साइटमेंट है लोगों में, वो रिलेट कर रहे हैं। आई थिंक ऑल एज ग्रुप्स आर काइंड ऑफ रिलेटिंग इट, बिकॉज रामायण महाभारत जब आती थी तो सभी देखते थे, तो हम्म। दैट मेक सेंस। और एक चीज़ अच्छी पता है क्या रहेगी ना, कि इसमें जैसे जो 90s के लोग हैं, जो 90s के पहले के लोग हैं, उनको कनेक्शन ज़्यादा फील होता था पहले से ही, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही चीज़ें सिखाई जाती थी। बट जो भी बाद वाली जनरेशन आई थी ना, तो बाद वाली जनरेशन को स्टार्टिंग में उतना फोकस नहीं करवाया गया इन चीज़ों के ऊपर, जैसे महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर। बट अभी जैसे ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, जैसे अभी मूवी लेके आ रहा है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मतलब अभी पिछले 2-3 साल में, 2-4 साल में काफ़ी चीज़ें इंडिया में रिलीजन को लेके या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेके ना बहुत चीज़ें आगे आई हैं, और लोग अवेयर हो रहे हैं को, स्पेशली कोविड के बाद से राइट। लोग अवेयर, हाँ, लोग अवेयर हो रहे हैं। तो फिर वो चीज़ें ना काफ़ी अच्छी हैं कि मतलब एक कंप्लीट एज ग्रुप है, वो सारा का सारा एक जगह पे फोकस करेगा, मतलब अपलिफ्ट होने के लिए, बेसिकली कनेक्ट होने के लिए। राइट। तो आई काफ़ी थिंक वो हेल्पफुल एक है। और रीज़न उसका ये भी है कि इंडिया में लोग सीख रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि अब उनका जो नॉर्मल बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम जो हम्म। लोग हैं, उनका पूरा हो चुका है। तो नाउ दे आर नॉट, यू नो, वर्किंग लाइक ऑल द टाइम फॉर देयर बेसिक स्टफ। अब उनके पास हम्म। थोड़ा टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा और बाकी चीज़ों में ध्यान देने के लिए और सीखने के लिए। तो ट्रू ट्रू। yeah, let's read couple of more comments and then couple of new comments and then we'll go for the second episode. As a Nepali, I just want to say I'm all hyped up because of the Purana and cultural reference on movie. And also, I just love the South Indian vision. Man, you can't deny about that. All love. God bless. Yeah, same. I mean, North India maybe, even though we don't know languages and local customs and traditions, क्योंकि वो तो हर, आई थिंक हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत हम्म। डिफरेंस होता है, बट जो ओवरऑल यूनाइटिंग पावर है वो आई थिंक सेम है हमारी। तो एक ही कल्चर रहा है हमारा हजारों सालों से, तो वो हमें यूनाइट करता है एज अ कंट्री, एज अ भारतवर्ष। तो आई थिंक दैट्स मैसिव। और नेपाल भी पहले हमारा ही पार्ट था, तो सारे किंगडम्स होते थे, बस नेपाल अभी भी किंगडम है। दैट्स अनदर थिंग, बट इट्स द सेम कल्चर। हम्म। ये बहुत बड़ा कमेंट है। लेट्स रीड दिस वन। फाइनली वी गॉट अ क्रिएटर after years who have the guts to tackle source materials and doesn't get bogged down by their impact. Yes, it is like what Virgil did to Iliad and Odyssey, what Shakespeare did to Roman history, and what Kalki Krishnamurti did to the history of later Cholas. भाई मेरे को आइडिया नहीं है इसका। मुझे भी ये ना आई थिंक रेफरेंस दे रहे हैं कि जो पुराने चीज़ें थी, जैसे पुराने स्क्रिप्चर्स थे, हम्म। तो या फिर पुरानी हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री को फोकस में लाके एक नया नज़रिया दिया, मतलब आने अभी वाली जनरेशन को या थोड़े टाइम पहले वाली जनरेशन को दिखाने के लिए, हम्म। कि ऐसा था पहले, अभी मतलब ऐसा पहले हुआ है। हम्म। हाँ, एक ना विज़न दी दिखाने के लिए, तो आई थिंक वही रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, और अभी नागा सर भी ना सेम विज़न यूज़ कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री रही है, उस हिस्ट्री हम्म। को अभी वाली जनरेशन को दिखाने के लिए।
ट्राई कर रहे हैं या दिखाने के लिए। या दैट मेक सेंस. Stunning visuals in between, especially the landscapes. Dude, Nagi, you got balls, man. True, man. 5 साल की मेहनत है ना. 5 साल। Yeah. Let's check the new comments. Nag Ashwin, a great visionary director, superb. Love from Malaysia. Nice. या नाइस। So Hindu people from all over the world are watching it. That's good. This Hanuman should be Prabhas. Okay. But Kalki Prabhas feels like Allah? ये नहीं मेरे को समझ आया भाई. नो कमेंट्स। Okay. I don't know. एक और कमेंट पढ़ेंगे. आफ्टर मूवी रिलीज मार्वल आस्क्ड हाउ मच डॉलर्स यू नीड. या वेल बट दे कांट कॉपी दिस थिंग राइट. वो अपना वेस्टर्न कुछ ले ही आएंगे अगर वो कुछ ऐसा हिंदू या इंडियन कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाते भी और उन्होंने बनाई है पहले तो कुछ खास नहीं निकली. मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए उनकी उससे. तो वो कभी वो हार्ट टच नहीं कर पाएंगे इंडियंस का. तो ठीक है फिर अब चलते हैं सेकंड एपिसोड पे. तो शुरू करते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या है. वर्ल्ड ऑफ कल्कि 2898 AD एपिसोड 2. Kashi or Varanasi is said to be the first place was born in. It was the idea of like, what if our story ended here? The story is basically between these. So Kashi or Varanasi is said to be the first place where civilization was born in this world, like, by the banks of the river Ganga. That's written in a lot of our books and scriptures. It was the idea of like, what if our story ended here? Like, if that was the first city, like, what if this world now has only one city left and everybody in the world and all the resources and all the major conflict now happens here in Kasi. So that was the setting for Kalki. And now we are in a world where the most life-giving river, the Ganga, is dry. And people in Kasi are just living in just like a very brutal survival of the fittest sort of way. And above them towers the complex. Like maybe you guys have seen in the trailer or something, like this massive mega city sort of structure, like an inverted pyramid that is a kilometer into the sky. So that is the complex which has essentially everything. It's like paradise. It has all the greenery, resources, water, food, animals, everything that is not there in the world before. It's almost like a microcosm of what the world used to be like. And now it's the story is mainly set up here. It's between these two worlds, the people who are in the complex who control those resources and the people who are below in Kasi who don't have access, and these people in Kasi only just have a dream to enter the complex. In a way, it becomes a cycle. So for you to do the work to earn money to get into the complex is like one trap that you end up working for the complex and you finish your life before you can actually get in. So it's like one sort of a cycle, which is sort of something that happens today as well. Apart from these two worlds, there's also a third world which we call Shambhala. Shambhala is something that we hear in many cultures, like even in Tibet. शंभाला ये यहाँ पे ही वैनकूवर के पास एक शंभाला फेस्टिवल होता है. इट्स अ ट्रांस म्यूजिक फेस्टिवल. तो उसमें वो ये ना बुद्धिज्म से रिलेटेड है. तिब्बतन बुद्धिज्म से रिलेटेड. तो यहीं पे अभी फेस्टिवल होना है अगस्त में होना है ये. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ तक भी और यहाँ पे भी जो लोग अटेंड करते हैं दे आर लोकल पीपल. इंडियंस को नहीं पता ये चीज़. तो दैट्स सैड बट या आई थिंक व्यूवर्स को शायद मालूम नहीं हुआ कि मैं गुड़गांव में हूँ अभी करंटली और चैतन्य है, चैतन्य भी कनाडा में है. तो कंटिन्यू करते हैं अभी. Something that we hear in many cultures, like even in Tibetan culture, it's called Shangri-La, and every culture has a name which is a mystical land which is hidden from the world, and that's where some people say advanced beings, some people say the avatar, some people say many things, like how the name Shambhala itself is very connected to the myth of Kalki, to the legend of ये नहीं मेरे को Kalki, पता था. because it's said that this is where the final avatar will come. That is the most powerful and that is the most familiar thing about the Kalki story. So these are our three worlds, and each of these worlds have a design or a thought process behind it. The complex people and the weapons and their vehicles
are designed in a certain way because of what they have. People in Kasi are designed a certain way because of what they have. The world, you know, there's money which is units, and they are bounty hunters who need these units to get their job done or to finish their aspiration to want to go into the complex. And there's this third world, which is Shambhala, which is essentially the refuge. It's like a massive refugee camp in a way, like for all the religions and all the cultures that have been hunted down in this world by the complex. So they all needed a place to hide. The people in Shambhala are part refugees, part rebels, part the resistance who are fighting the complex. So the story is basically between these three worlds, and each of them are very unique in their own way, and how their paths cross and how the story goes forward. हम्म, तो इंटरेस्टिंग भी इंटरेस्टिंग भाई। हाँ, तो यहाँ पे ना जैसे 3 सिटी मेंशन करी हुई हैं। एक तो हो गई काशी, सबसे पुरानी वाली, हम्म या जो सबसे पहले सिटी थी हम्म वर्ल्ड की। दूसरा इन्होंने मेंशन किया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम्म में जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और सब कोई वहाँ पे जाना चाहता है। और फिर तीसरी चीज़ है, तीसरी जो सिटी बची, तीसरी सिटी बची शंबाला। हाँ, जहाँ पे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, वेद पुराणों में मेंशन है कि जो कल्कि है, कल्कि का वहाँ पे बर्थ होगा, कल्कि का वहाँ पे जन्म होगा। और ये भी बोला हम्म जाता है कि वो शंबाला सिटी में कि बहुत सारे अवतार भी हैं, ऐसे बहुत सारे इमोर्टल बीइंग्स भी हैं। और बहुत सारे ऐसे बीइंग हैं जो बाकी वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम्म हाँ, तो ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और वापस से काशी पे आते हैं। काशी पे जो रिवर है, ऑलमोस्ट जैसे गंगा रिवर, इन्होंने मेंशन किया कि गंगा वो सबसे पुरानी रिवर मानी जाती है, तो वो सूख चुकी है। और अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में पानी अभी अवेलेबल है। जो भी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए, आराम से जीने के लिए, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है। बट काशी में वो नहीं है अवेलेबल। तो काशी के जो भी लोग हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो डार्विन की थ्योरी थी आई थिंक। तो काशी के जो लोग हैं वो तो अभी अपने सर्वाइवल पर ही टिके हुए हैं। वो सर्वाइवल ही चाह रहे हैं कैसे भी करके। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काशी शहर में प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और वो ट्राई कर रहे हैं कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स के लिए काम करने के लिए, थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए, या फिर कुछ यूनिट्स अर्न करने के लिए, फिर कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, जिससे कि वहाँ पे आराम से वो जी सकें। जब तक भी उनकी लाइफ है तब तक वो आराम से जी सकें। तो यहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये रही है। और हम्म बाकी चैतन्य, आपको क्या लगा है, मतलब ये हम्म दोनों एपिसोड देख के? काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेलर में ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही थी कि कौन सा वर्ल्ड है और क्या हो रहा है एक्चुअल में। उसमें हम्म, एक्शन और जो म्यूज़िक है, फाइट हो रही है, वेपन्स हैं, विलन है, वो सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग थी। बट इसमें एक्चुअल पता चल रहा है कि स्टोरी क्या है। प्रेल्यूड में इंट्रोडक्टरी पार्ट पता चला, इसमें वर्ल्ड्स के बारे में पता चला और लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, मोटिव क्या है और क्या पॉसिबिलिटी है उनके लिए और वो क्या करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इससे काफ़ी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इनिशियल उसमें। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे आलोक और आपसे व्यूअर्स, आई डोंट नो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कहीं या नहीं, बट ये मूवी कितनी लंबी होने वाली है? 3 घंटे, 3.5 घंटे? क्योंकि इसमें बहुत कुछ होगा आई थिंक। और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ, जैसे अब महाभारत देखेंगे ना, तो महाभारत के कितने एपिसोड आए थे, बहुत हम्म सारे एपिसोड आए थे। और आई डोंट थिंक कि ये 3 घंटे में पॉसिबल हो पाएगा कि सारी की सारी चीज़ें रिलेट करके फिर दिखाना। हाँ, तो आई ये डोंट। मतलब मूवी नहीं है ये एपिसोड्स होंगे इसके। मुझे लग नहीं, एपिसोड तो नहीं बोलूँगा, मुझे लग रहा है मूवी मूवी है ये। बट ना इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। जैसे सीरीज आती है, एक पहले फर्स्ट पार्ट आया, फिर मूवी का हाँ, अगला पार्ट आया, फिर मूवी का अगला पार्ट आया। तो मुझे लग रहा है ऐसे करेंगे स्टार्टिंग मेंशन्ड है में। ब्रो, मेंशन्ड है 2 hours 50 minutes। ओके, 2 hours 50 मिनट्स की। ओके, तो मुझे लग रहा हाँ। है ना इसमें जो एंडिंग ये लोग करेंगे ना, तो मे भी ऐसे पॉइंट पे करें जिससे कि हमको हिंट मिले कि इसका भी अगला पार्ट आएगा। हम्म जैसे हाँ, बाकी मूवीज़ में भी होता है मोस्टली वैसे। और बाकी भी यहाँ पे कल्कि में तो मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है इसमें कि दोनों ट्रेलर और दोनों एपिसोड्स देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि एक मूवी में तो पॉसिबल नहीं इतना सब कुछ कवर करना।
एक पार्ट में तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इसके कम से कम 2 तो पार्ट आएँगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 ज़्यादा हो सकते हैं, बट एक में तो मुश्किल है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा पार्ट आए उसमें डेट थोड़ी और ज़्यादा हो गई हो, 2898 की जगह 2900 समथिंग हो गई हो, क्योंकि हुँ, हुँ। दीपिका प्रेग्नेंट है, राइट? तो अगले पार्ट में शायद कल की अवतार जो हुँ, हुँ। आएंगे उनके बारे में स्टोरी हो, उनकी अपीयरेंस हो गई है और फिर स्टोरी फिर उनके ऊपर फोकस्ड होगी, ऐसा मेरे को लग रहा क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है ऐसा बिल्कुल। है ना? या हुँ, मतलब मूवी का नाम भी ऐसा हो सकता है, कल की दी अपीयरेंस। मेरा बस अजम्पशन है, वो और भी हुँ, ज़्यादा एपिक होगी, बट या एनीवे दिस वाज सेकंड एपिसोड ऑफ कल की 2898 द वर्ल्ड ऑफ कल की, जिसमें वर्ल्ड्स की बात की है। हुँ, हुँ। तो वेरी इंटरेस्टिंग, फटाफट कमेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले टॉप कमेंट्स देखेंगे। दिस entire 4 minutes 4 seconds minute video engages more than the entire Adipurush. ट्रू, ट्रू। That's so true. My man literally has balls of vibranium to pull this off. Vibranium. भाई ये कौन सा एलिमेंट होता है? एलिमेंट होता है। आह, एलियन मेटल है ये कोई, हुँ, मेरे को हुँ। आइडिया नहीं था इसका। Vibranium ओके। was created by Marvel Comics in 1966, first appearing in Daredevil. Okay, okay. It's actually an alien metal that crashed to Earth. Okay, समझ गया मैं. I got the idea. ये सुपर हीरो पैन है. हुँ, हुँ। Concept art is top notch. It's unbelievable. Nagi just raised the level of Indian cinema. Now the second part of sci-fi movies will come, which were cancelled. Full support. Yeah, of course, full support, man. Of course. Sholay, Bahubali, and now it will be Kalki 2898. This movie will be remembered for ages. Yeah, यस, quite possible. एग्रीड। Who is excited for Big B Young Look? We all are. बिग बी यंग लुक? Young बिग Look भी बी है यंग इसमें, तुमने पोस्टर नहीं देखा क्या वो? नहीं देखा आई थिंक मैंने। अच्छा, हाँ, हाँ, याद आया। अभी अभी इसमें जो एपिसोड 1 था, एपिसोड 1 में उनके माथे पे जो ये थर्ड आई है ना, तो हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, ये भी आई थिंक ये वाला मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन हाँ थर्ड आई वाला, यू राइट। हुँ। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कह रहे हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। मतलब ही इज लुकिंग लाइक अभिषेक बच्चन थोड़ा थोड़ा, अभिषेक बच्चन लग रहे हैं, हाँ। है ना, थोड़ा बहुत। बट एनीवे, तो न्यू कमेंट्स पढ़ेंगे फटाफट। व्हाई इज दिस मूवी नॉट रिलीजिंग इन इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मे बी इट विल लेटर थोड़े ऑन, टाइम के बाद हाँ, हो सकता है ये। हु नोस। हुँ। Please include the Saugata Buddha, ninth avatar of Vishnu, and the founder of Mystic Shambhala. Oh, okay. हाँ, Yeah. So, ये तुम्हें पता है वो नाइन्थ बुद्धा, मतलब मैंने भी कहीं से सुना कि वो गौतम बुद्धा और सिद्धार्थ बुद्धा नहीं थे, वो अच्छा। ये वाले बुद्धा थे, सौगाता बुद्धा, मुझे जो तो ये हमारे लगता था कि अवतार माने जाते हैं। मुझे लगता था कि गौतम बुद्ध सुगाता ही थे। बुद्धा ओह! एक टाइटल है वैसे। बुद्धा इज नॉट अ हाँ, नेम, इज नॉट अ सर नेम। यस, तो सबसे यस। पहले जो बुद्धा थे वो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ बुद्धा। बट सुगाता बुद्धा थे जो नाइन्थ रिइंकार्नेशन माने जाते हैं हुँ। इनके। बट ये आई थिंक कई जगह पे ना मिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें सिद्धार्थ बुद्धा लिखा हुआ है। मैंने भी कुछ चीज़ें फॉलो की थी, ओके। तो उसमें मेरे को भी बाद में पता चला कि वो सिद्धार्थ बुद्धा नहीं थे, जो किंग थे। सिद्धार्थ बुद्धा बेसिकली किंग थे, और वो अपनी किंगडम छोड़ छाड़ के चले गए थे जंगल वगैरह, तो उनको लाइफ के बारे में पता चला, देन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग लाइफ। हुँ, हुँ। और ये वाले थे जो बोध गया में पैदा हुए थे। अच्छा, तो मैंने देखा हुआ कि हाँ, बोध गया में जो टेम्पल है, मतलब गया तो नहीं हम्म हूँ मैं बोध गया, बाकी हाँ, वीडियोज़ वगैरह देखे हैं मैंने बहुत। हम्म। तो अच्छा, इनका है सारा कुछ। Yeah, हुँ। he was the son of Anjana. In contrast, Gautam Buddha's birthplace was Lumbini. I think ये नेपाल है, हाँ, जितना मेरे को। लुम्बिनी, हाँ, नेपाल में। नेपाल है ना ये, हाँ। नेपाल है? यस यस, यस, लुम्बिनी प्रोविंस है ये नेपाल में। यस। And his mother was Maya. This distinction is crucial in understanding the narrative surrounding Sugata Buddha, बताओ। ninth avatar. Okay, another thing learned today. कितनी चीज़ें पता लगती हैं कमेंट पढ़ने से। है ना, वही तो आई थिंक। हाँ। और सब नहीं करते यार, ये जो रिएक्टर्स हैं यूट्यूब पे, सब लोग नहीं, उनको मेरे ख्याल से इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो बस वीडियो बनाने के लिए रिएक्ट कर लेते हैं। बट हमें एक्चुअल अंदर से एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार है क्या ये, क्योंकि मेरे को नहीं पता है पर्सनली इन चीज़ों के बारे में, साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में, साई-फाई और ये इंडिया से जो हो रहा है, हिस्ट्री की चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत पता है। और ऑब्वियसली ये माइथोलॉजी जो कही जाती है वो हिस्ट्री ही है हमारी। हुँ, तो हुँ। या it's good that we are following the comments. Let's read couple of more and then end the video.
Our bus is Hanuman. Who is here, sir? और बस इज हनुमान हुई, पता नहीं, मे बी ट्रांसलेट सही से नहीं हुआ ट्रांसलेशन है। अच्छा नहीं हुआ ये। गाइस हाँ। प्लीज़ कमेंट में बताओ हमें कि ये क्या है। ये तेलुगु लग रही है मेरे को। आई माइट बी रॉन्ग, बट प्लीज़ लेट अस नो। या I'm so impressed with everything about this film. It's genius. Yeah, amazing. So that's it for now, guys. अगर आपने हमारा सेकंड ट्रेलर वाला रिएक्शन नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट आउट हियर एंड लेट अस नो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके और आप कितने एक्साइटेड हो। तो या विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।